اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ بہت دیر سے بہت سارے ٹاپکس پر بہت سارے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں وقت بھی مد نظر رکھتے ہوئے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ میں 7 سے 10 منٹ کے اندر ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہی چیز بتاؤں گا جو آپ اگر تھوڑا بھی عقل کو دہرائے، اپنے فکر کو آگے بڑھائے تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سبھی کے سامنے ان چند پوائنٹس نکال کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ معاشرتی سماجی زندگی میں قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے اور کیا کیا ہم اس قربانی سے سیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی سے کیا فائدہ ہوتا ہے قربانی میں، یا قربانی اور ٹیکنالوجی میں کیا رشتہ ہے۔ کیونکہ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جس دور میں ہر جگہ ٹیکنالوجی ہے، تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی ہمیں قربانی کا جو پس منظر ہے وہ سمجھنا ہوگا اور اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہوگا۔ تو بلا تاخیر میں اپنے نقطات کی طرف چلتا ہوں۔ قربانی کے بارے میں آپ لوگ بہت سارے باتیں سنے کہ قربانی ہمارے اسلامی قوانین میں ایک اہم چیز ہے، جس کو ہر وہ مسلمان جو مالک نصاب تک پہنچتا ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حکم دیا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے، حدیث میں اس کی بہت بار بار ذکر کیا گیا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، وہ سب بتایا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ لوگوں نے 2-3 بار سنے کہ قربانی 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ دار، احباب، دوست ان کے لیے، اور ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے جو غریبوں کے طرف اور جو سماج میں محتاج لوگ ہیں ان کے طرف ان کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اسی پر میں زیادہ فوکس کر کے چند بات کر سے گزر جاؤں گا۔ امید رکھوں گا کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ضرورت مندوں کی کفالت۔ ہم ایک خوشگوار ماحول میں رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی تقریباً ایسے سوسائٹی سے بہت اعلیٰ ہے کہ جس سوسائٹی کے لوگ دن میں 10 روپیہ، 100 روپیہ، 50 روپیہ یا زیادہ سے زیادہ 200 روپیہ کماتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دن میں صرف 200 روپیہ کما رہے ہیں، اور ان کے گھر میں کھانے والے 4 لوگ، 5 لوگ، 8، 10 لوگ تک بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے گھر والوں کو یا ایسے جو فیملیز ہیں، ان فیملیوں کو اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ دیا گیا ہے کہ جو ہر سال میں کم از کم ایک بار یا ایک وقت کے لیے ہو، یا ایک دن کے لیے ہو، یا ایک ہفتے کے لیے ہو، کچھ گوشت کھانے کا یا ایسے غذا اپنی زندگی میں لینے کا کہ جس سے ان کی زندگی کی توانائی میں اضافہ ہو۔ جیسے میں آپ کو بتا دوں، ابھی بھی بہت سارے کنٹری میں ایسے آرگنائزیشن ہے جن چیزوں کی وجہ سے دوسرے کنٹری میں جیسے ساؤتھ افریقہ وغیرہ، صومالیہ وغیرہ، جہاں مسلمان لوگ بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، گوشت وغیرہ بھیجتے ہیں۔ تو ضرورت مندوں کی کفالت کے حساب سے ہمارے گاؤں میں بھی، ہمارے سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو سال بھر میں کبھی 1 یا 2 بار گوشت کھانے کا ان کو موقع ملتا ہے، لیکن قربانی کے وقت ہر گھر میں گوشت پہنچ جاتا ہے۔ امیروں سے اللہ تعالیٰ یہ کام لیا کہ اگر تم کتنے ہی امیر ہو جاؤ، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے سوسائٹی میں دیکھا جائے سائیکالوجی کے حساب سے کہ کچھ لوگ امیر ہونے کے بعد غریبوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کبھی غریب رہے ہوں گے، لیکن اس پر بھی واجب ہے، اگر ایسا نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم صرف ایک چیزوں کے لیے نہیں، ایک طبقے کے لیے نہیں، ایک سوسائٹی کے لیے نہیں
एक चीज देखा गया कि लोग अपने घर के हिस्सा, जिसको कुर्बानी का गोश्त ना कहे तो बेहतर होगा, कुर्बानी हो गया, आपको तकवा का जो सवाब है, आपने जो नियत किया वो सवाब आपको मिल गया। उसके बाद हिंदुस्तान में देखा गया है कि अपने घर के आसपास जो लोग गरीब होते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी ये गोश्त फराहम किया जाता है। इसमें फिक़ही मसाइल है बहुत सारे, इसमें रुखसत भी है, उसके बारे में इंशाल्लाह आप लोग सवाल कर सकते हैं, उसके जवाब भी मिल जाएगा। और आपको अगर पर्सनली पूछना है तो हम बता देंगे, क्योंकि ये मैं सिर्फ अपनी जो ज़रूरत की जो बात है वो पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद ईसा और हमदर्दी, मतलब मैं एक आयत पढ़ा आपके सामने, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। आप और हम और दुनिया के सारे लोग पैसे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, पैसे से हर कोई मोहब्बत करते हैं। तो ये पैसा ही है जिससे हम जानवर खरीदते हैं, फिर उस जानवर को, एक जानवर के साथ जितना ज़्यादा लगाव होगा उसका उतना ही सवाब है। तो ये चीज़ एक हमदर्दी और इमोशन को क्या करता है, बांटता है। एक गरीब आदमी वो कभी मालदार आदमी से बात करने का उसका एक मौका नहीं होगा, वो कभी बात करने से डरता होगा, लेकिन जब मालदार आदमी आके उसको एक गोश्त का एक थैला उसके हाथ में पहुंचाएगा और बोलेगा आप मेरे लिए दुआ करना, तो उससे क्या होता है, एक हमदर्दी पैदा होती है कि मालदार है लेकिन वो अल्लाह से डरता है और वो दुआ मांग रहा है। तो ये चीज़ भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या है, प्रमोट होता है कुर्बानियों के दरमियान। आप लोगों ने गौर किया होगा, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग कुर्बानियों में गोश्त अपने रिश्तेदारों के घर पे लेके जाते हैं। फिर उसी तरह माशराती हम आहंगी, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, लेकिन जब कुर्बानी होती है तो उस वक्त एक बहाना मिल जाता है कि उस बहाने से वो अपने दोस्त के पास पहुँचे, या ऐसे लोग गाँव के जिससे हम नाराज़ रहते हैं, अपने घर का कुछ हिस्सा गोश्त लेके उसके घर में जाके देना। जब ये हम करते हैं, कभी वो गरीब होगा, बहुत ज़्यादा गरीब होगा, उसको जब हम एक खाने के लिए कुछ दिया तो उसके दिल में एक नरमी हो जाएगी, और आप अगर कोई गुनाह भी किए होंगे तो वो माफ़ कर देगा। उसके साथ एक मालदार में और गरीब में माल का एक फ़र्क होता है, मतलब मालदार के पास बहुत सारा माल होता है, गरीब के पास वो नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि मालदार के हिस्से में से गरीबों के लिए एक हिस्सा रखा गया है। आप हर साल या तो साल भर में आप क्या करते हैं, सदका करते रहते हैं, वो अलग बात है, आप करें नहीं करें, कोई ऐसा मालदार है सदका नहीं करता तो उसका गुनाह उसको नहीं मिलेगा, लेकिन करने से सवाब मिलेगा। लेकिन कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करते हैं तो आपको गुनाह मिलेगा और उसका आपको अज़ाब भी मिलेगा। तो ये चीज़ हम जो मुआशरती सोसाइटी में एक जो इक्वालिटी का और एक चैरिटी का जो एक चलन है उसको हम आम कर सकते हैं। एक इंसान साल भर में कुछ भी चैरिटी नहीं करता, कुछ भी खैरात नहीं देता है, लोगों को मदद नहीं करता है, लेकिन क्या पता कुर्बानी का एक गोश्त दूसरे घर में जब देने जाए, उस घर के एक आदमी या उस घर की एक औरत एक ऐसी बात कहे जिस बात की वजह से उसके दिल में एक मोहब्बत पैदा हो जाए और आने वाले दिनों में भी वो खैरात करने लगे। इसका भी बहुत ज़्यादा क्या है, उसमें इम्कानात है कि वो उसके बाद से खैरात करने लगे। फिर शुक्रगुजारी, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा माल और दौलत दिया है, आपके घर में है नहीं है, आप उसका खोज करना है, आप उसको अपने आपको से बात करना है। जैसे हमारे उस्ताद लोग बताए कि इतने पैसा या इतने माल अपने ज़रूरियत के अलावा होने से क्या करना होगा, आपको कुर्बानी करना होगा, आप पर कुर्बानी फ़र्ज होता है। तो आप अपने अब्बू से, अपने घर वालों से, अपने चाचा से उनको बताइए, मसला आपको समझाइए। जब वो कुर्बानी करेंगे तो उसका सवाब आपको भी मिल जाएगा। और शुक्रगुजार ये है कि अल्लाह ताला ने हमको बहुत माल दिया है तो हम इसकी कुर्बानी अदा कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत सादी चीज़ है, बहुत आसान जबान में बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। फिलहाल इस दौर में एक ऐसा टेक्नोलॉजी भी आप लोगों के सामने इजाद किया गया है। लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि जिसमें आप सऊदी अरब में रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, घर में नहीं आ सकते या आप इधर ही रह रहे हैं, लेकिन इधर से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो फरीज़ा है उसको आप अंजाम दे सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो शरीयत के मुताबिक आपके लिए वो बकरा खरीदेंगे, आपके लिए वो आपका कुर्बानी का जानवर खरीदेंगे और वो आपको तमाम दलीलें व्हाट्सएप के ज़रिए से हो, फ़ोटो के ज़रिए से हो, शरीयत के मुताबिक जो
बाअमल है, इस्लामी हर उसूलों को फॉलो करते हुए वो आपके लिए कुर्बानी करेंगे और उसका वही सवाब मिलेगा जो आप खुद करने से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके घर में सिर्फ अकेला एक आदमी होता है, उसका भाई ब्रदर कुछ नहीं होता, तो उसको भी ये चीज़ अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में रहकर साउथ अफ्रीका, सोमालिया और हत्ता के गजा में भी हम क्या कर सकते हैं, कुर्बानियाँ दे सकते हैं और उसका सवाब हमें भरपूर मिलेगा। सवाब उस वक्त ज़्यादा मिलता है, हदीस में आप लोग सुने होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर कोई बकरी वगैरह ज़बह करते तो पूरा का पूरा क्या कर देते थे, सदका कर देते थे। क्यों? क्योंकि ये सदका करने से पूरा बकरी उनके लिए जन्नत के दिन मिल जाएगा, उसका सवाब होके मिलेगा। फिर उसके साथ ई पेमेंट, आप जो पैसा भेजते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे लोगों को जो पैसा भेजते हैं कुर्बानी करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी के जरिए ही भेज सकते हैं, क्योंकि दूसरे कंट्री में आप अपने हिंदुस्तान के करेंसी को यूज़ नहीं कर सकते। और उसके साथ ये गोश्त की तकसीम, ऐसा देखा गया है कि हमारे सोसाइटी में जो गोश्त तकसीम करने के लिए ऐसा देखा गया है कि गोश्त को तकसीम करने के लिए लोग डिलीवरी का भी इस्तेमाल करते हैं, और वो कर सकते हैं। अभी भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप एक जगह गोश्त भेजना है, आप ऐसा नहीं भेज सकते, तो क्या करना, आप उसको डिलीवरी करना, और डिलीवरी करके आप जिसको पहुंचाना था उस जो शख्स है उसके पास आपका वो गोश्त पहुंच जाएगा, आप उधर पहुंचा सकते हैं। ये ऑनलाइन के ज़रिए से, ये हमारे हिंदुस्तान में कभी इसकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिस जगह मुसलमानों का आम रिवाज है वहाँ उन लोग करते रहते हैं। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए से, जैसे हम लोग अभी इधर बात कर रहे हैं, और से सोशल मीडिया में कुर्बानी की अहमियत को बयान करते हुए इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग लोगों को ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं, कुर्बानी करने पर उसको उभार सकते हैं। और लास्ट पॉइंट कहकर मैं इधर से रुखसत हो जाऊँगा, और वो ये है कि डेटा मैनेजमेंट। एक गांव में, एक सोसाइटी में या एक इलाका में कितने लोग गरीब हैं, हम सिर्फ अभी के ज़माने में बहुत कम वक्त में एक बार कंप्यूटर में मारने से आपको पता चलेगा। सर्वे के हिसाब से बहुत सारे ऐसे सर्वे किए जाते हैं कि ये लोग गरीब है, वो लोग गरीब है, तो उन गरीबों का सर्वे लेकर, उन लोगों का सर्वे लेकर उनको हम गोश्त पहुंचा सकते हैं या ऐसी मदद कर सकते हैं जो मदद की उनकी ज़रूरत हो। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ पता हो गई होगी। तो आप लोग आपके घर में ज़रूर आप लोग पूछना है, और किस तरह, अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो इन तरह की टेक्नोलॉजी की मदद से जहाँ लोग करते हैं उधर पैसा भेजकर आप लोग इंशाल्लाह कुर्बानी के जो एक अहम फरीज़ा है उसको अदा करने की आप लोग कोशिश करना है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से भी ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।